Education and skill development complement each other. A strong educational foundation helps to understand new skills quickly. Skill contributes to adaptability, entrepreneurship, problem solving abilities, self confidence, life skills, and academic success too. By incorporating creativity in the classroom, students can gain a renewed enthusiasm for learning and develop skills for their future careers. A very warm namaste to our beloved Principal Ma'am, Vice Principal, and my dear students. Today, under Infosys Foundation Cultural Outreach Program, we have ENA Arts Workshop. Under the same program, recently we have witnessed patriotism. Do you remember, children? Yes. So, as per the Infosys Cultural Outreach Program, we have this ENA Art Workshop by Miss Rabia Fatima and her team. Please give a huge round of applause. Welcome, ma'am. Welcome, ma'am, to the workshop. Now let me introduce Miss Rabia Fatima. She has completed her BCom. Now she is working as an HR in a IT-based company. She is a mehendi artist in traditional and contemporary henna designs and working in this field for the past 8 years. Her passion is in bridal henna and handled more than 100 bridal and non-bridal projects and also conducted henna workshops in few schools. Ms. Rabia Fatima is assisted by her team, Ms. Soma Nani Das and Tanya Begum. Please welcome them, children. They conducted henna camps and henna crash courses in summer vacations. Ms. Soma Nani Das completed her MBA and pursuing chartered accountancy and working as a senior accountant in a private CA-based firm. It is a creativity, passion and keen interest which gives them a good break from their very hectic lifestyle. So welcome the children. Now I will call Ms. Rabia Fatima to take over. Hello everyone. Good morning. How are you all? Okay, myself Rabia Fatima, I am introduced. And she is my friend, Soma. Hello. Hello. Yeah. So today, as we all know, this is a henna presentation, art shop, and how many of you don't know anything about henna? You can raise your hands, please. Don't know anything. Okay, fine. So how many of you know? A lot of students say. Nice. So we are going to start the presentation now. And in the meantime, how many of you know that mehendi is not just for our hands, it's a medicinal herb? Very good knowledge. Okay, let's start with the presentation, okay? Henna and mehendi में कुछ difference है? No. So henna and mehendi are one and the same items, right? Everybody knows that now? Because मैंने भी henna के बारे में पूछा था तो सभी ने hands up कर दिया था इसीलिए. So henna and mehendi are one and the same. So henna is an Arabic word and mehendi is an Indian word, ठीक है? तो हम इंडियन वर्ड्स को मेहंदी कहते हैं और अरबिक में henna. Basically, it is not mehendi, it is mehendika as per our ancient Indian और Ayurveda. Ayurveda में हम mehendika कहते हैं जिससे वो मेहंदी के नाम पे आ गया है, ठीक है? So it is not mehendi, its originally is mehendika, right? So अगर presentation चालू हो जाएगा अभी तो presentation में देखते हैं ना. So we have a lot of answers actually. It's Arabic, it's Indo-Arabic, Indian mehendi, Marwari design. Bridal design is something different, which is we use very certain brides and all. So bridal is different. And Khapri design, which is very in trend. We all know Khapri design, right? Khapri, floral designs. Okay, we go with floral. So floral design, Khapri design, and tattoo design. You know tattoo? So आजकल क्या होता है ना, मेहंदी
टैटू, सिर्फ टैटू के बेसिस पे लगाते थोड़ा सा मिनिमम डिजाइन, राइट? I guess you all are aware of that tattoo design. Hello, so this is Soma and I'm here for henna presentation, as you all know. We regularly do camps at summer holidays. So today we're going to see what is henna. So what is henna actually? What is henna? I'm asking you guys, what is henna? मेहंदी नॉर्मली जो अपने हाथों में हम लगाने के लिए यूज करते हैं, we naturally call that henna, right? henna कहाँ से आता है? Do we know that? henna कैसे बनाते हैं, कहाँ से आता है? So basically, henna is a plant-based dye that comes from the leaves of the henna tree, and in biological terms we call henna as Lawsonia innovalis. Are you aware of that, Lawsonia innovalis? So normally हम henna कहते हैं, बस उसका biological term है that is called as Lawsonia innovalis, okay? And पहले हम टाइम से पत्ते लेकर उसको सुखा करके then we paste it, we make the paste, and then we apply on our hands. So that is nothing but a henna application on our hands, right? So henna is nothing but a plant-based dye that comes from the leaves of the henna tree called Lawsonia innovalis. And the word henna is derived from Arabic. So henna word is typically it comes from Arabic word, ठीक है? henna जो है एक Arabic word है, और अपने इंडिया में क्या बोलते हैं henna को? तो मैं अपन इंडिया में उसका मेहंदी कहते हैं, बट नॉर्मली अरबिक में या कहीं बाहर की कंट्री से हम उसका henna बोलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, मेहंदी is derived from the word मेहंदिका, which comes from Ayurveda. इंडिया में एंशिएंट इंडिया में जब आयुर्वेदा था, अब भी आयुर्वेदा है, तो आयुर्वेदा में हम उसको मेहंदिका कहते हैं. मेहंदिका से the word मेहंदी derived from. Next, it is nothing but a reddish brown colored dye made from the powdered leaves of a tropical shrub called Lawsonia innovalis. So it is nothing but a shrub. Normally तो ये एक medicinal herb है जिसको हम अपने हाथों में डेकोरेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं. Next, it is generally a temporary tattoo on our hands, a temporary design on our hands, जो कि 2-3 दिन में fade off हो जाता है जनरली, ठीक है? So a temporary tattoo or a temporary body art that is used by many different cultures across the world. It's not only in India, it's not only Hindus only. बाकी दूसरे रिलीजन के लोग और गल्फ कंट्रीज में अब्रॉड में भी henna का एप्लीकेशन होता है. So it is used by different cultures across the whole world. Normally इजिप्ट में, अफ्रीका में और यूएसए में हर जगह, even in Dubai it is very famous. They call it as henna, right? The origin of henna और मेहंदी का. तो जब henna कहाँ से आया है, henna की शुरुआत कहाँ से हुई है? henna की शुरुआत कहाँ से हुई है, किसको पता है? ये इंडिया से नहीं है. नॉर्मली जो बेसिकली जो पुराने लोग बोलते हैं, as per the records and as per everything, it is not from India. It starts from Egypt. Okay. The origin of henna and its initial uses of henna are uncertain. The first use of henna can be traced back 5,000 years, so it is that old. Can you imagine? क्या हमने कभी सोचा था कि ये 7,000 साल से henna है? जब से. So the first use of henna can be traced back 5,000 years, as early as the 12th century, the common era. We all know 12th century as the common era. तो ये 5,000 साल 7,000 साल पुरानी चीज है जो हम अभी भी इसको यूज कर रहे हैं और इसको आगे लेके जा रहे हैं. ये जनरेशन टू जनरेशन हमको पास हुआ है, राइट? एंड द स्टार्ट ऑफ इट इज इन इजिप्ट. As per records, the ancient Egypt, henna was used on mummies. Do we all know mummies? They wrap the dead bodies, right? So mummies से use करते थे वो लोग to dye their
skin, nails and in funeral wrappings. तो उनके कल्चर में हेना को जब लोग मर जाते थे, जब लोग मम्मी में टर्न करते थे, जब लोग मम्मी बनाते थे डेड बॉडी को, तो फ्यूनरल्स के रिचुअल्स में वो लोग हेना को यूज करते थे। उनके नाखूनों को टाई करने के लिए, उनके स्किन को टाई करने के लिए, ठीक है। नॉर्मली मुस्लिम्स में जैसे कि बोला जाता है कि हम नेल पॉलिश नहीं लगाते हैं, वो लोग नेल्स से भी हेना का यूज करते हैं। तो इजिप्ट में भी उनके फ्यूनरल्स के टाइम पे जब वो लोग फ्यूनरल रिचुअल्स करते थे, वो लोग तब यूज करते थे। एंड ये चीज वहां से शुरू हुई एज पर रिकॉर्ड्स। However, we do not have any proper record that it is started from there only. Okay. Later, it arrived in North Africa during the Punic civilization, where it was used as a beautification tool. So, earlier क्या होता था इजिप्ट में, वो लोग फ्यूनरल के रिचुअल्स में यूज करते थे। But after that, during the Punic civilization, ये अफ्रीका में आया एंड अफ्रीका में इसको ना ही सिर्फ फ्यूनरल के रिचुअल्स में यूज करते थे, बल्कि ये लोग इसको ब्यूटिफिकेशन के लिए भी यूज करते थे। नॉर्मली वो लोग उन लोगों ने स्टार्ट किया हाथों पे लगाना या अपने बालों पे लगाना, ठीक है। तो पहले जो चीज फ्यूनरल्स में यूज होती थी, अब वो चीज ब्यूटिफिकेशन के लिए यूज होती है। और जो हेना है, ये नॉट ओनली फॉर हैंड्स, इट्स नॉट ओनली फॉर हैंड्स, बट इसका हेना ऑयल भी आता है जो कि अपन सर पे लगाते हैं, हेना को बालों में भी यूज कर सकते हैं। एंड हेना एक बहुत अच्छी मेडिसिनल हर्ब है। सो देयर आर डिफरेंट यूजेस ऑफ हेना। इट इज नॉट ओनली फॉर फ्यूनरल्स, इट इज नॉट ओनली फॉर ब्यूटिफिकेशन, इट इज अ वेरी गुड मेडिसिनल हर्ब, राइट। The Roman Empire used it as a medicine, perfume, oil and dye. So henna को ना ही सिर्फ एक ब्यूटिफिकेशन टूल और एक टेम्परेरी टैटू सिर्फ इसलिए यूज नहीं करते हैं, ये एक परफ्यूम भी है। This is something new to us, right? A henna as perfume. We don't know that. How many of you know that we can use henna as perfume? Great, some of you have known about that. So the Roman Empire used it as medicine. इसको बहुत अच्छा एक मेडिसिन है। नेचुरली जब एंशिएंट इंडिया में इसका यूज चालू हुआ, तब इसमें हर्ब के जैसे ही, एक मेडिसिन के जैसे ही या औषधि के जैसे ही यूज करते थे इंडिया में। तब हम इसको अपने हाथों में यूज नहीं करते थे, राइट। तो रोमन एम्पायर यूज्ड इट एज मेडिसिन, perfume, oil and dye. So what is used in Roman Empire? They used as perfume, medicine, oil and dye. It's naturally a very good natural dye for our hairs also. The Mughals are believed to have introduced to mehendi art in India itself around 1000 AD. Mughals और Muslims जो भी वर्ड हम यूज करें, और इस्लाम में ये 1000 AD के टाइम पे उनको इंट्रोड्यूस हुआ है। They were not aware of that earlier. और वो उनको इंडिया में आने के बाद जब उनका एम्पायरशिप यहाँ पर चालू हुआ है, तब उनको पता चला है हेना के बारे में। हेना इज अ मेडिसिनल हर्ब। इट्स अ वेरी मैजिकल थिंग दैट हेना बहुत सारी चीजों में यूज हो सकता है। Not only for hands, not only for hairs, not only for hair, it is used as, you know, अगर कहीं अपने को बर्निंग सेंसेशन भी हो रहा है, तो अगर हम उस हेना ऑयल को उस बर्निंग सेंसेशन की एरिया पे लगाएंगे, तो इट विल प्रोवाइड अस रिलीफ फ्रॉम दैट पेन। मेहंदी और हेना is considered as highly important medicinal herb in the ancient Indian practice of Ayurveda. जब इंडिया में हेना का इंट्रोड्यूस हुआ है, या अपने जो प्राचीन काल के जो भी वेद लोग थे और ब्राह्मण लोग थे, वो लोग हेना को एक आयुर्वेदा, एक औषधि के टाइप में यूज करते थे। They were not using it as a beautification tool, rather they were using it as a herb. Now we're going to see the benefits of मेहंदी और हेना। मेहंदी is nothing but the word mehendi, okay? Henna helps to manage all types of skin conditions. Henna को हम सिर्फ हेयर या ब्यूटिफिकेशन या टैटू के लिए डिजाइन के लिए यूज नहीं करते हैं। ये बहुत अच्छा एक स्किन मेडिसिन है। तो what are the skin conditions like anti-aging, allergy,
its chain, skin rashes and food due to its healing property called roper. तो हमारे दिमाग में ये डाउट आ सकता है कि हिना को हम कैसे मेडिसिन जैसे यूज कर सकते हैं। तो उसमें कई सारी प्रॉपर्टीज है। वन ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज इज रोपर, इट्स कॉल्ड रोपर, जो हम हैंड के या स्किन के कंडीशंस में यूज करते हैं बेसिकली। ऑल्सो हेल्प कंट्रोल एक्सेसिव बर्निंग सेंसेशन ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टी कॉल्ड शीता। तो नॉर्मली हमने देखा होगा हमारे घरों में या अपने बड़ों को कि वो लोग ड्यूरिंग द समर सीजन हिना को अपने पाम एरिया पे या अपने फीट एरिया पे जो तलवे होते हैं ना पैरों के उस पे लगाते हैं या सर पे लगाते हैं। तो इट इज नॉट एज अ ब्यूटिफिकेशन टाइप ऑफ थिंग। हिना जो है अपने बॉडी को बहुत ही काम रखने में हेल्प करता है। ठीक है, तो हिना में एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है शीता। इट्स वन ऑफ इट्स नेचर एंड इट हेल्प्स टू काम आवर बॉडी during the summer season especially. Helps in hair health as it is rich in protein, contains vitamin E and antioxidant. तो हेयर के लिए ये बेनिफिशियल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन है, विटामिन ई है एंड इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। नेक्स्ट, हेल्प इन रिलीविंग हेडेक। नाउ हाउ कैन हिना हेल्प इन रिलीविंग हेडेक? We have henna oil to use during migraine। जब हमको माइग्रेन का हेडेक होता है या जो भी सीरियस हेडेक होता है उस टाइम पे हम अगर henna oil का एप्लीकेशन करेंगे अपने फोरहेड्स पर तो ये बहुत ही अच्छा अपने को कामिंग सेंसेशन देगा, बहुत जल्द हम उस पेन से बाहर आ सकेंगे। तो henna oil जो है अपन हेडेक के लिए यूज कर सकते हैं। Helps in detoxifying the body। So many of people are not aware mindfully, but henna को intake भी करते हैं, नो henna को खाते भी है। Not the कोल वाला henna नहीं खाते हैं, जो लीव्स होते हैं ना, जो प्लांट से हम तोड़ कर लाते हैं, उस लीव्स को हम नेचुरली खा सकते हैं एंड ये बहुत अच्छा अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है। राइट, कोल वाला henna नहीं खाना है बच्चों, उसमें केमिकल होता है। Calms the body with its cooling properties. Since it has the property called Shita, it can help us to calm our body during summer season. Helps in reduce sweating and bring down the temperature and bring down the fever. henna जो है अपने फीवर में भी बहुत ही हेल्पफुल है। पुराने जमाने में लोग एलोपैथी की मेडिसिन नहीं लेते थे, पुराने जमाने में सब आयुर्वेदा और होम्योपैथी ही यूज करते थे। तो आयुर्वेदा में henna को या मेहंदी को बहुत ही अच्छा हर्ब माना जाता है और ड्यूरिंग जब फीवर होता था लोगों को, जब उनकी बॉडी टेम्परेचर पीक पॉइंट में होती थी, तब henna को यूज करते थे बॉडी का टेम्परेचर डाउन करने एंड एज ए रिजल्ट अपना फीवर भी डाउन होता था। तो henna के पत्तों को वो लोग नेचुरली यूज करते थे ऑन अवर बॉडी टू काम अवर बॉडी, टू कूल डाउन द टेम्परेचर एंड improve self-sleep with the help of henna oil। अगर हम henna oil का यूज करेंगे अपने फोरहेड पर या अपने पाम्स पर या अपने फीट्स पर, ये हमको हेल्प करेगा सोने में। नॉर्मली बहुत लोगों को सोने की प्रॉब्लम होती है, स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं, तो आप henna oil का यूज कर सकते हैं। रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर या बीपी को भी डाउन करता है। राइट, henna बालों में जैसे कि हमने देखा है अपने मम्मीज को या कोई एल्डरली पीपल को, जो पुराने जमाने के लोग हैं, वो लोग henna बालों में लगाते हैं। बालों में क्यों लगाते हैं बोल सकता है ना? बोलिए, वाइट है तो डाई करेंगे। तो henna पर डेली लगाते हैं क्योंकि अपना जो हेड है, जो टेम्परेचर है, बेसिकली हम इसको यहाँ से और फीट से और पाम एरिया से नीचे कर सकते हैं, अपना टेम्परेचर कम कर सकते हैं। ठीक है, फील लाइक नो इट इज हॉट एक्चुअली, राइट। तो बालों पे हम इसीलिए लगाते हैं, हम स्कैल्प पे लगाते हैं जनरली, और जो है कि अपने स्ट्रेस को डाउन करना है। ठीक है, सो हियर आर द बेनिफिट्स ऑफ henna। improves our scalp health। नॉर्मली लोगों को डैंड्रफ का इशू रहता है,
हाइड्रोजन यूज होता है, सोरायसिस होता है लोगों को, वो इसलिए होता है कि अपना स्कैल्प का जो pH बैलेंस है वो अप एंड डाउन हो जाता है। जो नॉर्मल pH बैलेंस है वो मेंटेन नहीं होता है, बिकॉज वी यूज सो मेनी केमिकल्स नाउअडेज ऑन आवर फेस। सो हेना से स्कैल्प का हेल्थ और उसका pH बैलेंस अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट, नेचुरल सन प्रोटेक्शन। एज वी ऑल नो, जो सन प्रोटेक्शन, सन की जो रेज है, यूवी रेज है, वो अपनी स्किन को, अपने बालों को बहुत ही गंदी तरीके से डैमेज करता है, विच इज नॉट इवन रिवर्सिबल। द डैमेज वी कैन नॉट रिवर्स। ठीक है, तो हेना जो है अपने बालों को बहुत ही अच्छा प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट दैट यूवी रेज। बैलेंस अवर स्कैल्प pH, कंडीशन हेयर। ठीक है, नॉर्मली हेना लगाने के बाद थोड़ा सा रफ हो जाता है, बट इवेंचुअली वो अपने फेस को बहुत स्मूथ करता है। ठीक है, रेगुलर एप्लीकेशन ऑफ हेना एड्स वॉल्यूम। जिनके फाइन हेयर्स होते हैं, जिनके थिन हेयर्स होते हैं, they can use henna on their hairs and it adds a very good volume to our hairs. Add volume promotes hair growth, we all know that, and enhances the hair texture and strengthens the hair. It is not only for color, it is not only for reducing the heat, body heat, but ये अपने बालों को बहुत ही अच्छी शक्ति देता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है, because it has antioxidant, it has vitamin E and it has protein. तो अपने बालों के लिए प्रोटीन बहुत ही बढ़िया चीज है बालों को हेल्दी रखने के लिए। तो हेना जो है हम यूज कर सकते हैं अपने बालों पे, बालों को हेल्दी रखने के लिए। ठीक है, सबको समझ आ रहा है? जैसे कि मैंने ये सब पहले से आपको बता रहा है, अपने एंशिएंट इंडिया में और आयुर्वेदा में इसको सेहत का श्रृंगार है। राइट, क्या बोलते हैं? सेहत का श्रृंगार। Now we will know the cultural significance of henna. We all just saw the medicinal benefits of henna. अब हम cultural significance देखेंगे। Henna is much more than pretty shapes and swirls on our hands. जैसे डिजाइनिंग के लिए नहीं है, इसका कल्चर में, डिफरेंट रिलीजियंस में उनका डिफरेंट मानना है हेना के लिए। So traditionally it is used to paint our hands, paint the blessings on the skin. जब हम हाथों में मेहंदी लगाते हैं, it is not for beautification. हम इसलिए लगाते हैं कि वो blessings देता है। जैसे कि हम नॉर्मली बोलते हैं कि शगुन की मेहंदी है during bridal. Henna symbolizes positive spirits and fortune, and it eliminates or wards off the evil spirits. ठीक है, ये जो है हेना का एप्लीकेशन जो है ड्यूरिंग एनी फेस्टिव ओकेजन और जो कि अच्छे टाइम पे हम लगाते हैं, किसी फंक्शन के टाइम पे लगाते हैं, ऐसा बोला जाता है कि ये बुरी नजर को दूर रखता है और ब्लेसिंग्स देता है। ओके, नेक्स्ट, गुड हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी एंड रिड्यूस स्ट्रेस। Now my friend Rabia will continue from here. She will tell you how we make henna paste. जब henna हम पत्ते तोड़ के लाते हैं, उससे पेस्ट कैसे बनाते हैं और मार्केट में कैसा बिकता है, क्या क्या चीजें हम इसमें यूज करते हैं henna पेस्ट बनाने के लिए, मेरी फ्रेंड राबिया आप एक्सप्लेन करें। हेलो, तो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम कैसे मेहंदी का प्रिपरेशन करते हैं, मेहंदी पेस्ट कैसे बनता है henna का। तो आप लोग को आइडिया है कैसे बनाते हैं मेहंदी पेस्ट? ओके, so go to the next slide. See how henna paste is made. ओके, यहाँ पर आपको क्वांटिटी के साथ में, मेजरमेंट्स के साथ में यहाँ पर मेंशन है। फर्स्ट you can see 20 ग्राम henna powder. ओके, when powder होता है, it's not as a paste or as a liquid, it's a powder. Okay, if you are taking 20 grams of henna powder, next आपको आएगा essential oil. Okay, we have to mix in that oil also. आप यहाँ पर देख सकते हो 4 ingredients है. First is henna powder, second is essential oil, and third is liquid, fourth is sugar. अब मैं आपको बताऊंगी henna powder अगर आप लेते हो 20 grams as a measurement, आपको लेना है essential oil 60 ml. ठीक है, आपको फिर लेना है 1400 ml लिक्विड.
लिक्विड में आप ऐड कर सकते हो वार्म वाटर और डिकॉशन या फिर शुगर वाटर या लेमन वाटर। आपको 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शन में आप कौन सा भी उसमें ऐड कर सकते हो। एंड लास्ट रहेगा शुगर, व्हाइट शुगर का आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो उसमें, अगर आप वाटर नहीं मिक्स कर रहे हो। ठीक है, अगर आप 200 पीनट पाउडर नहीं लेते हो, अगर आप एग्जाम्पल 100 ग्राम लेते हो, तो आपको प्रोपोर्शनली वहाँ पे उससे क्वांटिटी रिड्यूस हो जाएगी। लाइक 30 ml हो गया एसेंशियल ऑयल, 200 ml हो गया लिक्विड एंड 40 ग्राम हो गया है शुगर। तो हमारा पेस्ट यहाँ पर करके रेडी हो जाएगा। पाउडर इसमें आप यहाँ पर देख सकते हो पिक्चर में, फर्स्ट स्टेप एक प्लांट होता है, इसे हेना प्लांट। फर्स्ट वी हैव टू प्लग द लीव्स। ओके, लीव्स तोड़ने के बाद में फिर हमारा सेकेंड स्टेप होता है उसको गुड लीव्स एंड बैड लीव्स। बैड लीव्स वहां से निकाल देंगे, देन गुड लीव्स जो भी होगा हम उसको अच्छे से ड्राई करेंगे इन द सनलाइट और प्रॉपर टेम्परेचर इन फैन और रूम। थर्ड पॉइंट होगा आपको उसको ग्राइंड करना है पूरा सूखने के बाद। आई अंडरस्टैंड? सूखने के बाद आप उसको ग्राइंड करोगे, ग्राइंड करके पाउडर करोगे, आप एक बॉक्स में या कंटेनर में उसको स्टोर करके रख सकते हैं और ये आपको 1 दिन 2 दिन या 3 दिन से एक्सपायर नहीं होगा। यू कैन कीप इट इवन 6 months ऑल्सो, जस्ट ओनली ए पाउडर। आप पेस्ट बना के उतने मंथ्स नहीं रख सकते हो, बट आप पाउडर 6 months to 1 year तक रख सकते हो। Why essential oil is added in henna? Essential oil जो मैंने आपको बताया था, पाउडर में हमें ऑयल को मिक्स करना होता है। इसमें आपको डेट से यूकेलिप्टस ऑयल, कैसेट ऑयल, टी ट्री, क्लोव, लेवेंडर ऑयल। यूजुअली आपको पता होगा यूकेलिप्टस ऑयल को हम नीम की तेल भी कहते हैं। किस किस को पता है नीम की तेल? ओके, ग्रेट। सो नीम ऑयल इसलिए ऐड करते हैं हेना में क्योंकि हमें डार्क स्टेट के लिए वो आपके हाथ को मॉइस्चराइज करेगा। जब हम मेहंदी आपको लगाएंगे उसमें ऑयल रहेगा तो आपके हाथ पे बहुत अच्छे से उसका कलर आएगा, क्योंकि हम डायरेक्ट हेना पेस्ट नहीं लगाए, उसमें हम सब इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ डार्क स्टेट और लॉन्ग लास्टिंग चलने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज हेना हैव शुगर। Adding sugar to the henna powder makes the henna stay there against the skin longer, stick to the skin better and makes the henna more silky. It also helps to darken the color. शुगर भी हम इसलिए ऐड करें क्योंकि आप लोगों को सुना होगा जब हम मेहंदी लगाते हैं, मेहंदी लगाने के बाद जैसे मेहंदी नहीं झड़ना, लाइक हम हाथ से मेहंदी लगाने के बाद जो ड्राई होके नीचे गिरता है तो हम चक्कर का पानी लगाते हैं। आप लोग को पता है इस बारे में? उसके वजह से हम पहले जूस यूज करते हैं, इसीलिए हम शुगर मेहंदी में ऐड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ आपके हाथ में ज्यादा डेंजर रह सके और आपको डालकर स्टेन दे सके। नेक्स्ट इज डिकॉशन। डिकॉशन तो कॉमन है, जो हम बनाते हैं, आप लोगों को तो पता ही होगा, जैसे चाय बनाते हैं वैसे ही हमको डिकॉशन मेहंदी में ऐड करना होता है। हेल्प टू रीच द कलर टोन ऑफ हेना। आप डिकॉशन में 1 चाय का चम्मच पत्ती ऐड करने के बाद आपको और ज्यादा डार्क स्टेट के लिए आप उसमें क्लोव भी ऐड कर सकते हो, जिसको हम कहते हैं हिंदी में लौंग। यू नो? ओके। हेना आफ्टर केयर। मेहंदी लगाने के बाद हमको क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है और हमको कैसे उसको केयर करना है। एग्जाम्पल, पहले मेहंदी लगाने से पहले, हेना अप्लाई करने से पहले आपको अच्छे से हैंड वॉश करना होगा। उसके बाद में आप कोई भी टाइप का मॉइस्चराइजर नहीं लगा सकते हो, ना तो कोई आप लिक्विड लगा सकते हो, क्योंकि जब आप मेहंदी अप्लाई करोगे आपके हाथ एकदम ड्राई और क्लीन होना चाहिए, तभी आपको मेहंदी अच्छे से आएगा और उसका स्टेन आपको अच्छे से उभर कर आएगा। नेक्स्ट, add यूकेलिप्टस tea tree of lavender oil to henna paste. This will help set up dye better. आपको जो मैंने ऑयल बताया है वो ऑयल से आपको अच्छे से स्ट्रेन आएगा।
केस कैसे कर सकते हो? आप मेहंदी लगाने के बाद नींबू का थोड़ा पानी हाथ में लगा सकते हो, या शुगर थोड़ा पानी में मिक्स करके शुगर लगा सकते हो। और आजकल मेहंदी टेप भी निकला है, आप देख सकते हो। कवर योर हैंड विद प्लास्टिक वर्क, सॉरी नॉट टेप, इट्स प्लास्टिक वर्क। तो आप अपने हैंड्स को प्लास्टिक से वर्क भी कर सकते हो कि वो ज्यादा देर तक रह सकेगा, वो जल्दी चल सके। एंड थर्ड इज लॉन्ग। मैंने आपको लॉन्ग के बारे में बताया है, जो हम डिकॉशन में मिक्स करते हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग डिकॉशन। लॉन्ग का धुआं आप दे सकते हो, लेकिन जब आप पूरा क्लीन कर लोगे, क्लीन करने के बाद अगर आपको डार्क स्टेन नहीं आया, एग्जाम्पल आपको बहुत लाइट स्टेन आया, तो आप उसको और डार्कर बनाना है इवनिंग तक, तो आप मॉर्निंग में थोड़ा लॉन्ग का 5 से 6 लॉन्ग यानी 8 तक मैक्सिमम आप ले सकते हो। उसमें थोड़ा आप लॉन्ग डाल के पैन में 5 to 8 लॉन्ग आप उसमें डाल के ऐसे रख के भाप ले सकते हो। जब आप मेहंदी चढ़वा लोगे, जब आप पूरा क्लीन हो जाएगा, जब आपको स्ट्रेट आ जाएगा, तब आपको ये स्टेप फॉलो करना है, क्योंकि डार्कर टोन। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन, यू कैन अप्लाई एनी मिक्स बाम और जेंडू बाम और एनी पेंट बाम, जैसे कि मूव हो गया, पेंट स्प्रे हो गया, आप कौन सा भी वो अपने हाथ पे लगा सकते हो डार्कर स्टेन आने के लिए। फिर आपको जो भी अगर मैनिक्योर करवाना है, मेहंदी से पहले लाइक पैकिंग हो गया, आपको आपके हाथ से कुछ करवाना है, आप मेहंदी से पहले करवाएंगे 2 to 3 days बिफोर एटलीस्ट। आई गॉट इट? ओके। हाँ, लैवेंडर ऑयल भी यूज कर सकते हैं। ड्यूरिंग द हेना प्रिपरेशन ऑल्सो व्हेन यू आर मेकिंग द पेस्ट, वी कैन यूज लैवेंडर ऑयल ऑल्सो, बट जनरली यूकेलिप्टस ऑयल और जो नींबू ऑयल है ना, जनरली वही यूज करते हैं और वो बहुत अच्छा स्मेल देता है। इवन मी पर्सनली यूज दैट एंड नाउ वी विल सी द क्विक रिविजन ऑफ दैट। ये हेना प्रिपरेशन है, जब हम हेना लगाते हैं व्हेन द पेस्ट इज ऑन, ऐसा दिखता है। एंड जब आप नेचुरली जब झड़ा दोगे हेना लगाने के बाद, कलर बहुत लाइट होता है, एकदम से फर्स्ट ही आपको डार्क स्टेन नहीं आएगा, ठीक है। एक 20 आवर्स 24 आवर्स एक दिन का हेना प्रिपरेशन एंड देन 48 आवर्स द कलर इज वेरी मच डार्क। तो वी हैव टू फॉलो अ प्रॉपर आफ्टर केयर टू अटेन दैट स्टेज, राइट। तो हम पहले हैंड वॉश करेंगे, जब हम मेहंदी लगाएंगे हमारे हाथों में किसी भी तरह का क्रीम या लोशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, जब हम झड़ा देंगे, वी कैन यूज सर्टेन टाइप्स ऑफ ऑयल ऑन आवर हैंड्स, वी कैन यूज यूकेलिप्टस ऑयल और सरसों का तेल यूज कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं एंड वी कैन टेक द हाफ ऑफ लॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट विल इज अ क्विक रिविजन कि हेना पेस्ट कैसे बनता है। फर्स्ट वी डू हार्वेस्ट ऑफ लीव्स, पहले हम लीव्स तोड़ते हैं, उसको अच्छे से सुखाते हैं, उसको अच्छे से ग्राइंड करते हैं, एक फाइन पाउडर बनाते हैं। उसको अगर आपको चाहिए तो आप एक छन्नी की मदद से या स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन भी कर सकते हो। देन मिक्सिंग द पेस्ट विल मेक अ प्रॉपर पेस्ट ऑफ इट, विल अप्लाई ऑन आवर हैंड्स एंड इट विल रिएक्ट विद द प्रॉपर्टीज ऑफ आवर स्किन, ठीक है। स्किन के जो भी लेयर्स है उसका रिएक्ट करेगा एंड आपको एक अच्छा स्टेन आएगा। नेक्स्ट, हाउ टू रिमूव हेना। ऐसा होता है बार बार कि हमको बैक टू बैक फंक्शन हो रहे हैं और हमको बैक टू बैक मेहंदी लगाना होगा, तो हम ये देखेंगे कि हेना हम कैसे निकाल भी सकते हैं, राइट। तो वी कैन यूज बेकिंग सोडा, लेमन जूस, लूफा, टूथपेस्ट, ऑलिव ऑयल एंड सॉल्ट, ठीक है। यू कैन यूज बेकिंग सोडा बट बी केयरफुल, इट कैन हार्म योर स्किन, सो द सेम ऑप्शन आर लेमन जूस और लूफा। आप लूफा से निकालोगे ना तो पूरा स्टेन नहीं जाएगा, जो भी आपके आउटर स्किन में है वही जाएगा। जैसा आप देख सकते हो मेरे हाथ में अभी भी हेना का स्टेन है, तो ये पूरा कंप्लीटली आपसे नहीं जाएगा, जो आउटर स्किन में है वो निकलेगा, ठीक है। आप उसके ऊपर हेना एप्लीकेशन कर सकते हो, दैट विल बी फाइन। So here we done with the practical session. Here we done with our explanation part, and after break next session में हम देखेंगे कि practically हम डिजाइन कैसे बनाते हैं, and start with the basic things, ठीक है। So children, this was a theoretical session. Did you all understand? Did you learn how to mix the henna powder, how to make it a paste? What are the ingredients
you have to use in that? You have taken a note of it? Okay, my dear children, now we are taking a short break for the lunch. All of you have to go for lunch. Please sit down. Don't get up. Understand? You have to go for lunch, complete your lunch and come back at 12:50. Children, already we have taken a lot of time in settling down in the morning session, right? So if you get delayed in the afternoon session, your practical will get decreased. Okay, children? So you have to be here by 12:50. You have to be here. We settle down and we'll start the practical session. Mandala design, Kabir design, portrait design, and Pakistani design, Suri design, and jewelry design. इसका हम आपको पिक्चर भी बताएंगे, what is Arabic design and what is Indian design and etc. Okay, are you ready guys? Sure. So morning आप लोगों ने बोला था सिर्फ 3 टाइप के डिजाइन है, ब्राइडल, नॉर्मल वाला और अरेबिक बोला था शायद आप लोगों ने. You can see there are more varieties of that. So we'll see each of them. Arabic design. Arabic design में सिर्फ हम आउटलाइन करते हैं और द शेप्स बनाते हैं एंड देन वी शेप की हेल्प से हम उसके अंदर फिलिंग करते हैं. उसके अंदर कोई इंट्रिकेट फिलिंग नहीं होगा, सिर्फ लाइंस. सिंपल अरेबिक डिजाइन. डिजाइन में ये होता है कि हम इसमें इंट्रिकेट फिलिंग करते हैं. जो अंदर का फिलिंग होता है वो बहुत ही बारीकी से होता है एंड क्लीन से होता है के साथ. जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें ज्यादा आउटर शेप्स नहीं है जैसे अरेबिक में होता है. इसमें हम अंदर की फिलिंग पर ज्यादा फोकस करते हैं. ठीक है, दिस इज द वैरायटीज ऑफ डिजाइन. नाउ इंडो अरेबिक डिजाइन. इसमें क्या हो रहा है ना, जैसे अरेबिक में होता है कि हम सिर्फ नॉर्मल आउटर शेप करके शेडिंग के द्वारा हम फिल करते हैं. यहाँ पर आउटर शेप प्लस इंडियन का जो फिलिंग होता है वो दोनों को मिला करके हम इसको इंडो अरेबिक बोलेंगे. ओके, मालवरी डिजाइन. मालवरी डिजाइन में ज्यादातर ये होता है कि वो लोग पीकॉक्स यूज करते हैं. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंडियन एंड मालवरी डिजाइन. वो लोग ज्यादातर पीकॉक्स पे फोकस करते हैं. तो क्या किया, पीकॉक्स किया तो इस मालवरी. ओके, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसमें जो शेप्स बनाए हैं ना ज्यादातर मोर है. ब्राइडल डिजाइन. नॉर्मली ब्राइडल डिजाइन में ये सब का मिक्सचर होता है, अरेबिक, इंडियन, मालवरी या जो भी दूसरे अदर डिजाइन से मिक्सचर होता है. लेकिन ब्राइडल में हम ऐसा करते हैं कि बहुत हेवी डिजाइन होता है. द इनर फिलिंग्स एंड आउटर शेप्स और जो डिजाइन का डिजाइन का वो बढ़ता है एंड हम यहाँ पे देख सकते हैं ब्राइड ग्रूम का पिक्चर्स बनाए. These are the varieties of bridal design. Single line system, it's above elbow. So जो नॉर्मल ब्राइडल डिजाइन होता है ना एल्बो के ऊपर से होता है. Is it nice? Now mandala design. आप लोगों ने सबका देखा होगा ना, आर्या भट्ट की शादी में उन्होंने मंडाला डिजाइन लगाया था अपने हाथों पे. बेसिक सा डिजाइन मंडाला डिजाइन. Now we will see the varieties of it. Nice, na? Those who don't want heavy designs on their hands, they can opt for this mandala design. Now complete design. The floral design is available. इसमें ज्यादातर फ्लावर्स का ही यूज होता है. इसमें हम पीकॉक्स एंड फ्रूटी बनाते हैं. इसमें इंडियन जैसा फिलिंग नहीं होता है. इसमें हम सिर्फ फ्लावर्स का ही यूज करते हैं. इवन फिलिंग्स में भी वो लोग छोटे छोटे फ्लावर्स ही यूज करते हैं. एक मिनट से यहाँ पे ज्यादा फ्लावर्स लेते हैं जैसे रोज फ्लावर, नॉर्मल जैस्मिन काइंड ऑफ एंड लीव्स. दिस इज नाइस ना? Not like regular one, this is a little bit different from others. Here also you can see ज़्यादातर flowers ही है. फिलिंग के जैसा पूरा भरा भरा है. और कभी डिजाइन में हम फ्लावर्स से पैचेस बना के डिजाइन बना सकते हैं. ओके,
तो ये उनका सिग्नेचर स्टाइल है। ये सिंपल पाकिस्तानी डिजाइन, बहुत ही मिनिमम डिजाइन, चूड़ी डिजाइन, ये तो बहुत फेमस है ना, हम पहले से हम यूज करते हैं। बैंगल डिजाइन बोलेगा, बैंगल डिजाइन पता है आप लोगों को? मेरे बैंगल डिजाइन है जो कि आपके हाथ में गोल गोल होता है। अगर आपको गोल गोल पूरा नहीं करवाना है तो आप ऐसे साइड में भी लगा सकते हो। ओके, ज्वेलरी डिजाइन जो हमारे झुमका होते हैं या जो मंदिर की घंटी होते हैं ना, जो बजाते हैं मंदिर जाने पर, वो सब भी हम हिंदी में यूज करते हैं। या नॉर्मली जो अपन नेक सेट पहनते हैं या इयररिंग्स पहनते हैं, उससे ऐसे ही डिजाइन बनता है क्योंकि इसका झुमका चाहिए। These are not exact measurements, approximately ये जो भी है. Next we add sugar. Normally 40 grams of sugar or 100 grams of henna powder. ये बस आपको बताने के लिए कैसा है, आप घर में इसको प्रैक्टिकली बना करके देख सकते हैं. एसेंशियल ऑयल हम इसमें लास्ट में यूज करेंगे. पहले हम पानी से इसका पेस्ट बनाएंगे. जब पेस्ट बन जाएगा तब हम एसेंशियल ऑयल यूज करेंगे. ओके, एंड दिस इज अबाउट 30 ml ऑफ एसेंशियल ऑयल. और जो लिक्विड है हम इसमें डिकॉशन ले रहे हैं. आप चाहे तो नॉर्मल गर्म वाटर ले सकते हो या कोई और लिक्विड ले सकते हो, बट डिकॉशन वर्क्स बेस्ट फॉर दिस. आप डिकॉशन में 3-4 लौंग या क्लोव्स यूज कर सकते हो. दैट हेल्प्स अ लॉट इन डेवलपिंग द स्टेट. ओके, इसको आपको थोड़ी मिक्स करना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे. एक अच्छा सा पेस्ट बनाना है. जब आपका पेस्ट रेडी हो जाएगा एट लास्ट आपको उससे एसेंशियल ऑयल यूज करना. ना एसेंशियल ऑयल अगर आप बहुत ज्यादा यूज करोगे तो वो आपकी स्किन को जला सकता है. सो बी केयरफुल अबाउट दैट. पेस्ट है ना, इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा. तो हम अभी आपको यहाँ पूरा कम्प्लीटली मिक्स करके नहीं बता सकते, बट जो भी है एक कंसिस्टेंसी मेंटेन होना चाहिए ताकि ये स्पैचुला या जो भी आपका विस्कर है उससे नीचे गिरे. तब आपको पता चल जाएगा कि ये पेस्ट रेडी है.
लंग्स ना रहे। अगर आपको कोई डाउट है कि इसमें लंग्स रह गया है, आप एक नॉर्मल ड्रॉप्स ले सकते हो या बहुत ही मेश काइंड ऑफ स्ट्रेनर ले सकते हो और आप उसमें पूरा सा स्ट्रेन करके निकाल सकते हो। तो जो भी आपका बचा कुचा लंग्स रह जाएगा वो वहां से फिल्टर हो जाएगा। ओके, अब हम इससे जब पेस्ट रेडी हो जाएगा हम लास्ट में इसमें एसेंशियल ऑयल ऐड करेंगे। दिस इज अबाउट 30 ml ऑफ एसेंशियल ऑयल। ये हम लोगों ने यूकेलिप्टस और मेहंदी ऑयल लिया है। आपको जो भी इजीली अवेलेबल होगा मार्केट में आप यूज कर सकते हो, लाइक लैवेंडर ऑयल या ऑलिव ऑयल। आप देख सकते हो जब हम लोगों ने इंग्रेडिएंट्स ऐड किया है तो मेहंदी का कलर चेंज हो रहा है। हमको जैसे मार्केट में मेहंदी मिलती है ना उसका कलर ऐसे चेंज हो रहा है। थोड़ा उठा the consistency should be perfect, not very glowy kind of thing, not very hard. मतलब ये फ्रैक्शन से गिरना चाहिए। अभी इसको बहुत बैठना पड़ेगा, मिक्स करना पड़ेगा। जो भी अभी टाइम परमिट नहीं करेगा तो we keep it aside and we move forward. Okay? So this is the basic steps to make your henna as paste. अब जैसे कि इसका कलर चेंज हो गया है, it's not like regular, it's like market product. Okay? Now we'll see the cold preparation. हेलो, ये देखिए कोड कैसे बनाते हैं। प्लीज टेक योर शीट। जिसके पास ये शीट नहीं है यू कैन यूज अ पेपर। टेक अ पेपर, हाफ पेपर, नॉट अ फुल। मेक इट हाफ। आप लोग प्लास्टिक पेपर क्यों ला रहे हैं? प्लास्टिक पेपर वाटर You made already? Very good. Very good. But it is so many now. Let's perfect. Let's make it four. Okay, fine. Basically, you have to take a rectangular paper, not the square one, okay? Measurement कुछ भी हो सकता है, तो rectangular. You can do the measurement of half paper. Fine. Since my friend is me, you can follow her. She started the procedure, you can follow her. आपको पेपर के पीछे देखो, आपको पेपर बीच में पकड़ना है। आप लोग पेन के साइड स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट होल्डिंग द बोर्ड वेरी लेटर। दैट इज वेरी बिग मार्क, दैट इज वेरी बिग। यू कैन नॉट यूज इट एज मेहंदी बोर्ड। चलो पहले बता दो कि कैसा करना है। ओके अंदर आपको बीच में से पेपर को पकड़ के फोल्ड करना है। ऑल यू शुड मेक बहुत ज्यादा। ओके फाइन। आगे दैट द फोल्ड। ओके नाउ वी स्टार्ट डूइंग प्रैक्टिकल एक्चुअली। जैसे हमें क्या है बेसिक स्टेप कैसे करना है, हमको थिक लाइन और शॉर्ट लाइन कैसे करना है। अभी सर अपने मेहंदी कोर्स लेंगे। अभी प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, प्लीज होल्ड योर मेहंदी कोर्स। द टिप शुड बी नैरो। प्लीज हैंड विथ वन पेपर और कोड। वेयर इज योर मेहंदी कोर्स और मेहंदी कोर्स? So first we draw a straight line, basic line. Right, please concentrate here. Otherwise you lost the edge. Please notice here. Start doing with your henna coat, please. If you are not comfortable with henna coat, you can use pen or whatever it is. Line, basic straight line. आपको कोड ऐसे पकड़ना है जैसे आप पेन पकड़ते उसको ऐसे पकड़ना है। ओके, गेट कंफर्टेबल विथ योर कोड, व्हाटएवर यू आर कंफर्टेबल। एंड थिक लाइन हम कैसे बनाएंगे?
2 thin lines and then we will fill in between. Okay? ठीक है? 2 thin lines and we will fill in between. Now you can follow the steps. In your paper, start from one corner, children. Start from one corner easily. Don't just start in the middle. Okay? Are you done with this? Next is spiral. See, look at your handwriting. आपको पहले बड़ा सर्कल से स्टार्ट करना है. देख सकते हैं आपको सब दिख रहा है. स्पाइरल, नेक्स्ट थिंग है स्पाइरल. आपको इसको गोल अंदर तक घुमा के रहना है. ओके? आप लोगों को दिख रहा है ये? Is it visible to everyone? No? Let me say in the projector children. प्रोजेक्टर में देखिए आप लोग थिन लाइन एंड थिन लाइन. ठीक है? थिन लाइन बहुत ही बारीक है. थिन लाइन से हम क्या करेंगे? पहले 2 थिन लाइन बनाएंगे एंड हम उसके अंदर फिल करेंगे. अब डायरेक्टली मोटा लाइन बनाओगे तो वो प्रॉपर्ली नहीं आएगा. We'll draw a second flower. Please focus on this. If your paper is filled with the next is marked. Back side से नहीं करना है आपको. Next is seal. Next हम पब्लिक के फ्लावर्स बना देखेंगे. The same is kind of a problem saving your body. जो हमें हमारा बराबर है वही वाले. And then इसके ऊपर से आपको आउटलाइन बनाना है. ब्रॉड हम्स के ऊपर आउटलाइन बनाना है. And then petals. Kind of leaves, okay, elongated petals. अब अगर देख सकते हैं मैं कैसे petals बना रही हूँ. Children, here do काम क्या? Pay attention here. Did you complete that group? The second cover. Let's draw the spiral. Then hump on the outer circle. Then the petals. 3 layered petals. बोर्ड की तरफ देखिए. ब्रॉड हम्स को आपको फिल करना है एंड एलोंगेटेड पेटल्स को भी आपको फिल करना है. Children, on the screen is a rose flower. Rose flower.
Please make a final thought of salute. Please Children, if you have the space in your paper, you can continue the same paper if you have a space. మీ గురించే తీసుకొని వచ్చింది